एक टाइम पे कैसे 1000 लोग अपलोड कर देते हैं? It is just because of MapReduce. When I talk about this term MapReduce, just imagine that you have a big complex problem. There's a big problem which is really complex. It's so complex that one machine can't solve it. Let's say even though if it is not so complex, but still it won't take lesser time. It will take some time. Let's say 1 second or 2 second or 3 second, and I don't want to invest that much time. I want to do it in less than 1 second. Okay, let's say I have to find the length of a string. Okay, I have to find the length of a string, and let's say the string is MapReduce. Okay, the string is MapReduce. The total length is I think 9, and it takes my computer around 1 second to find the length of this string. Now let's say the length, there is one essay of whose length I have to, one essay. Okay, it not contains just one word, it contains hundreds and thousands of words. So will it take 1 second for that same computer to find its length? Definitely not. Because if a computer has the capacity to solve this small problem in 1 second, how will it solve a big problem in 1 second? It doesn't have that capacity. So what if I tell multiple computers to take one part of this problem? There's a big problem, and now I say multiple computers, you take some part of this problem. You first computer takes some part, second computer you take some part, third one you take some part, and you start computing. So let's say this word takes 1 second to be computed, and we have 100 words. So one computer will take 100 seconds to do the computation. But what if those 100 words are then given to 100 computers? They will do their thing, they will do their computation, and they will submit their responses. For example, this word, there are 100 words and it is given to 100 computers. Each computer takes 1 second to do that particular computation. So every computer will take 1 second only, and they all are running in parallel. This means your entire job, which would have taken 100 seconds, it just takes 1 second. How? Because of MapReduce. Okay, this was the overall concept. I'll go in depth. MapReduce is a powerful paradigm of parallel computation. Parallel computation matlab there are many computers running in parallel. They are doing work in parallel in a group. एक ही टाइम पे सब काम कर रहे हैं. Okay. Hadoop uses MapReduce to execute jobs on files in HDFS. अब मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि HDFS में कैसे we get one big chunk of file, one big 1 GB, 1 TB of file, and then it is distributed in different chunks. 128 MB का chunk या फिर 68 MB का chunk, 64 MB का chunk, ऐसे it is distributed in, or it is splitted into many parts. Now this part is then computed by different nodes. अब ये सारे नोड अपना काम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? पैरेलल में कर रहे हैं. पैरेलल में करने से फायदा क्या होता है? इफ एक टीबी को सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर को 1 घंटा लगेगा, उसको 64 MB ही दो, बट 64 MB आप 100 कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा. जो टोटल टाइम है ना, वो सेव हो जाएगा. योर टोटल टाइम विल बी सेव्ड एज there are many computers who are doing parallel processing. So the processing power is now computed as a group. और आपका problem statement भी छोटा हो चुका है, because now you don't have to worry about 1 TB का file. Now your system has to worry about बस छोटा सा chunk of 64 MB or something, और हर एक system has to worry about that, और वो लोग 1 second में कर देंगे. ठीक है, because of their computation power. This way MapReduce works. Next point. Hadoop will intelligently distribute computation over cluster. Cluster क्या होता है? Cluster कुछ नहीं होता, एक group of computers होता है. Group of computers. Cluster 1 में 100 computers, Cluster 2 में 200 computers, Cluster 3 में 400 computers, ऐसे अलग अलग clusters है. Hadoop क्या करेगा?
he knows, Hadoop knows कि कौन सा क्लस्टर ज्यादा पावरफुल है. He will give that cluster more task और more work to do. यार तुम ना 2 GB वाली फाइल ले लो और ये छोटा क्लस्टर है जिसका कम पावर है, you take 500 MB वाली फाइल and do the computation और फिर मुझे रिजल्ट दे देना. ठीक है. This way Hadoop intelligently distributes computation over the cluster. ठीक है. Now take computation to data. ये नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. लेट्स से अब ये मैप रिड्यूस टेक्निकली दिखता कैसे, हाउ डज इट लुक टेक्निकली, मतलब जो थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज कैसे दिखता है. वी टॉक्ड अबाउट ओवरव्यू कि एक कोई प्रॉब्लम आया, ये अब इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इट वाज गिवन टू मेनी कंप्यूटर्स और वो कंप्यूटेशन करके वापस रिटर्न कर दिया. ये तो ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू हो गया. इंटरनल कैसे काम करता है. Let's say you have one operation which is known as map. Map क्या करता है, फंक्शन बता देता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू एडिशन या फिर स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ये एक फंक्शन है. ठीक है. अब मैप क्या बोलता है, मैप फंक्शन ए बी सी, ऐसे 3 फंक्शन में डिवाइड कर दिया ए बी सी. अब उसने मैप क्या किया, मैप स्क्वायर फंक्शन. एक स्क्वायर फंक्शन है, वो क्या करता है, जो भी नंबर आप पास करोगे उसको स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा. ओके. लेट्स से आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने में लगता है 1 सेकेंड. अब ऐसे आपको 500 स्क्वायर करना है, 500 सेकेंड लगेंगे. इससे अच्छा व्हाट इफ आई गिव दैट 500 नंबर्स टू 500 डिफरेंट कंप्यूटर्स, हर को 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड में आपका सारा काम खत्म हो जाएगा. ओके. समझ रहे हो. दिस वे मैप वर्क्स. ओके. अभी सिर्फ मैप की बात करें, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स रिड्यूस. We are just talking about map. Map reduce is combination of 2 terms. We're talking about map in which function is giving. Function दिया जाता है कि कौन सा function आपको करना है, किसे नोड पे कौन सा function करना है. Now what does it returns? It returns a list constructed by applying a function to all items in a list passed as the second argument. मैं बताता हूँ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये now you have to compute squares. ठीक है. you have to compute squares. अभी ऊपर वाली लाइन को ही देखो. ठीक है. you have to compute square of 1, compute square of 2, compute square of 3, compute square of 4. तो आपको ये 4 चीजें करनी है. now your machine takes 1 second to compute square of 1, 1 second to compute square of 2, 1 second to compute square of 3, 1 second for 4. ऐसे करके अगर आप एक मशीन को ये टास्क दोगे तो इट विल टेक 4 seconds टू कंप्लीट इट. व्हाट इफ आई मैप द स्क्वायर फंक्शन विद दीज इनपुट्स 1 2 3 and 4 to 4 different machines. व्हाट इफ आई गिव इट टू 4 different machines. मशीन 1 को स्क्वायर 1 करने को दे दिया, मशीन 2 को स्क्वायर 2 करने को दे दिया, मशीन 3 को स्क्वायर 3, मशीन 4 को स्क्वायर 4. एंड योर मैपर क्या करता है, इट मैप्स कि फर्स्ट मशीन को ये स्क्वायर 1 जाएगा, सेकंड मशीन को स्क्वायर 2, थर्ड मशीन स्क्वायर 3, फोर्थ स्क्वायर. ऐसे मैपर का काम होता है ये फंक्शनल मैपिंग करना. ठीक है. इट गिव्स द फंक्शनल मैपिंग. अब ईच ऑफ द मशीन विल गिव इट्स आउटपुट. लेट्स से मशीन 1 को जो फंक्शन मिला था इट वाज कि आपको स्क्वायर 1 निकाल के देना है. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसने फटाक से आउटपुट दे दिया 1 सेकंड में. मशीन 2 ने बोला स्क्वायर 2 निकालना, तो उसने फटाक से आउटपुट दे दिया 1 सेकंड में 4. सिमिलरली मशीन 3 और मशीन 4 ने भी अपना आउटपुट दे दिया. अब आता है काम रिड्यूसर का. रिड्यूस क्या करता है, जो भी डिफरेंट आउटपुट्स मिले हैं अलग अलग मशीन से, इट कंबाइंस टू फॉर्म योर सिंगल आउटपुट. इतना ही होता है मैप. अभी फिर से बता. लेट्स से यू हैव टू डू सम ऑफ स्क्वायर्स. मतलब आपको प्रॉब्लम है कि आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका स्क्वायर करना है पहले, फिर जो भी स्क्वायर है उनको ऐड करके आपको आउटपुट देना है. अब ये एक मशीन को करने में 10 सेकंड लग जाएंगे, सपोज 10 सेकंड लग जाएंगे, बट 10 मशीन को करने में 1 ही सेकंड लगेगा क्योंकि वो सब पैरेलल प्रोसेसिंग पे कर रहे हैं. अब जैसे ही उनका आउटपुट मिले, रिड्यूसर फंक्शन क्या बोलता है, रिड्यूसर कहता है कि जो भी स्क्वायर्स आए उसको सम कर देना है. तो लेट्स से सम करने में 1 सेकंड लगता है किसी भी चीज का सम करने में. अब यहाँ से इसका आउटपुट आया 1 4 9 16,
रिड्यूसर ने फटाक से दे दिया 30। क्यों? क्योंकि उसको ये जो कंप्यूटेशन थी ना, स्क्वायर निकालने वाली, जो मुश्किल काम था, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे फटाक से हो गया। ठीक है, दिस वे 2 components are used in MapReduce which are known as मैपर और रिड्यूसर। मैपर का काम है फंक्शनल मैपिंग करना, रिड्यूसर का काम है whichever output does the functional mapping give, combine it or reduce it to just one single output. This way MapReduce works. अब you have multiple problem statements. आप बहुत सारे problem statement देख सकते हो। Some of the easy problem statements are sum of squares of even and odd number। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सम स्क्वायर तो आपको निकालना था, दैट इज योर मैपर का जॉब कि स्क्वायर निकालना है। अब वो स्क्वायर इवन आएगा या ऑड आएगा, ये काम रिड्यूसर करेगा। रिड्यूसर विल टेक केयर कि इफ इवन है तो इवन नंबर का स्क्वायर वो निकाल के इवन नंबर का सम निकाल के वो दे देगा, और अगर ऑड है तो ऑड नंबर का सम निकाल के दे देगा। दिस इज हाउ मैपिंग एंड रिड्यूसिंग टेक्स प्लेस। और ये सब पैरेलल कंप्यूटिंग में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हो रहा है, एंड द पर्सन और द टेक्नोलॉजी हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इज Hadoop। ओके, तो Hadoop एंड MapReduce, ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है ना, इट इज काइंड ऑफ ब्लोइंग अप द इंटरनेट। बहुत ही फास्ट चीजें होती है। अगर एक फोटो अपलोड करने में 10 सेकंड लग रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सेम मैं भी वो फोटो अपलोड कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, 10 लोग कर रहे हैं, तो 10 सेकंड के हिसाब से तो 1 घंटा लगना चाहिए लोगों की फोटोज अपलोड होने में। पर ऐसा क्यों नहीं होता? एक टाइम पे कैसे 1000 लोग अपलोड कर देते हैं? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ MapReduce। ठीक है, एंड पैरेलल कंप्यूटिंग।